Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel. In today's topic, we are going to cover development of resources. Why do we need to understand this topic? Because with the modernization of our civilization, we all can see how we are using our resources in day-to-day life. Our whole life, our living standard is totally depending on nature and as well as the efforts which are used by human being to convert raw material into final form of goods which we all are using. But have you ever understood the things behind it, how these resources are coming from and how they are used? And in few states these resources are rich and in few states are lagging behind using of such resources. It is all because of we have no rational planning to use the resources. Why? Because with the advancement or competition in the world, with the global economy, we are faster growing at any cost, and the cost of growing this modern economy is actually the damage of environment, द डिप्लीशन ऑफ एनवायरनमेंट, द डिप्लीशन ऑफ आर सराउंडिंग. आज के टाइम में आप देखें, हम जब बात करते थे अपने एल्डर से, अगर हम सुनते हैं तो पुराने लोग हमेशा यही कहते हैं, हमारे गांव में इतना अच्छा होता था पहले, एयर बहुत फ्रेश हुआ करती थी, वाटर हुआ करता था. बट क्या हम आज के टाइम में ओपन सोर्सेज से पानी भी पी सकते हैं? सोचने की बात है, राइट? वाई? बिकॉज वी आर डेवलपिंग. एंड ये डेवलपिंग कैसे आ रही है? रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से, रिसोर्सेज के ओवर यूटिलाइजेशन से. इंडस्ट्रीज आर गोइंग बेस्ड ऑन रिसोर्सेज. So to understand that, why do we need to conserve these resources? Because if in the same way we are going to use these resources, definitely in future these resources will not be available to us. So we need to make rational use of resources. So for which we are going to start with planning, how to execute the availability of resources, how these resources will be available throughout the nation in a same ratio, in a same manner, this same manner. And all these are possible if we have proper planning, which could be and which must be executed at each level of our region, each level of our society and each level of our government. It means it should be decentralized. हर तरफ हर जगह एक सा होना चाहिए. आप सबको पता है, कुछ रिसोर्सेज कश्मीर में अवेलेबल हैं, कुछ रिसोर्सेज साउथ में अवेलेबल हैं, कुछ ईस्ट में अवेलेबल हैं, तो कुछ वेस्ट में अवेलेबल हैं. हर स्टेट, हर रीजन फुल ऑफ रिसोर्स नहीं है. राजस्थान सोलर एनर्जी से ब्लेस्ड है, लेकिन वाटर सप्लाई में लेस है. इसी तरह से हम कई एरियाज़ के बारे में जानते हैं. तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में देखें तो हर जगह हर चीज़ नहीं है, फिर भी हम कई सुविधाओं का पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जहाँ कमी है वहाँ हमने उसको पूरा करने की कोशिश करी है विथ फ्रॉम अदर स्टेट्स, फ्रॉम अदर रीजन. तो कई रीजन रिच हैं और कई रीजन पुअर हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. तो ये रिसोर्स हाथों में हो, कुछ हाथों में नहीं है. तो क्यों है ऐसा, क्यों अनसिस्टमैटिक है? ये सब डिपेंड करता है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन पे. बट हर ह्यूमन का राइट है, उसके पास जो लिविंग स्टैंडर्ड है या उसके पास जो इन्वायरमेंट है उसका फ़ायदा उसको भी मिले. इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में रिसोर्स प्लानिंग और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जैसे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है. So here we'll begin with the topic. Before we start the topic, I would like to say to everyone that subscribe my channel and also comment, share, so that you can get time to time notification of my upcoming videos. And especially I already announced for 10th class, my videos will come only on Monday and Tuesday, and for 12th class it will come on Thursday, Friday and Saturday. Right? Both are the board classes, so we need to make ourselves more perfect and we need to be continuous in our study throughout this period. Here, right, understood? So let's we begin with the topic, development of resources. So here we begin. Development of resources. Now what is development of resources? It refers to the use of resources irrationally in environment by human being, which means जिस तरह से हम resources का use कर रहे हैं, we are having no idea in what way we are moving ahead. किसी भी पॉइंट पर किसी भी तरीके से बस हम आगे निकलना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं, जिस वजह से हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, which leads to following problem. What are they saying?
which leads to following problem. तो क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट व्हेन वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज? द फर्स्ट वन इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हेयर मीन्स रिसोर्सेज का डिक्रीज होना, रिसोर्सेज का कम होना. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच आर कमिंग इन द प्रॉब्लम ऑफ अ मॉडर्न एरा. जिस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ना हो कहीं फ्यूचर में जाकर के वो रिसोर्स हमें ना मिले. अगर हम अपने घर में बात करें कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ी हैं, और जिन लोगों के पास नहीं है होती उनके उनके बारे में सोचिए. आप देखना अपने घर में कभी भी एक बार कि कितनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन आपने वो जो चीज़ें अपने पास रख ली उसकी वजह से वो दूसरों को नहीं मिली. दूसरी बात, जिस तरह से हम इनकी डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, तो इनकी डिमांड पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेज को फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है नेचर से, उसे ज़बरदस्ती एक्सप्लॉइट करना पड़ रहा है, ओवर यूज़ करना पड़ रहा है. तो इस ओवर यूटिलाइजेशन के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में, फास्टर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ के चक्कर में हम पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और कई सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी शुरू हो रही हैं. वी ऑल कैन सी फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है. तो ये सब क्या है, ये आज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो इकोनॉमी का जो बैलेंस होना चाहिए, एनवायरनमेंट का जो बैलेंस होना चाहिए, वो हमने ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से ये हम पे रिवर्स अटैक कर रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं. मूविंग टू द सेकेंड वन. The second one here says accumulation of resources in few hands. It means that resources are not equally available to each and everyone. These are very few people are enjoying rich resources in their hand, and few people are not having even their basic needs. What I am talking about, due to the faster growing economy or due to the extra use of resources, we have divided the society in the world in two ways, that is rich and the poor. Rich are having more and more luxury life with them, while poor are not even having 2 meals of a day. किसी को खाने को नहीं मिल रहा और कोई अननेसेसरी चीज़ों के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है. वी ऑल कैन से, आज की जो हमारी फैमिली की लाइफ, हमारी जो स्टैंडर्ड हो गया है, उसमें अगर घर में 4 मेंबर है तो चारों के पास गाड़ी है. अगर हम चाहें तो एक से भी काम चला सकते हैं, नहीं, पर हम क्या कर रहे हैं, 4 लोग हैं तो चारों अपने अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, सब अपने अपने तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं. तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, अगर 4 व्हीकल्स आपके घर में हैं तो आप पेट्रोल की डिमांड बढ़ा रहे हैं, राइट. और पेट्रोल की डिमांड बढ़ती है तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो पेट्रोल अगर किसी फैक्ट्री को फैक्ट्री को चलाने के लिए और उसमें किसी काम के लिए यूज़ हो सकता था, तो वहाँ यूज़ नहीं होगा और वहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलेगा. राइट. इन अ सेम वे, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम जब आपको बार बार बोला जाता है कि जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप स्विच ऑफ करिए, लेकिन कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, और जो लोग बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, रिमोट एरिया में रह रहे हैं, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी हमारे जैसे लोग या हमारे आसपास के लोग ही कंज्यूम करके ख़त्म कर देते हैं, तो उन तक तो ये अवेलेबल हो ही नहीं पाता. तो यहाँ पे पुअर सेक्शन को कुछ अच्छा नहीं मिल पा रहा और रिच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच होता चला जा रहा है. इट इज़ वाई, बिकॉज रिसोर्सेज का हमने रैशनल डिवीजन नहीं किया है. यही चीज़ मैंने आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर में भी समझाई थी कि कुछ ही लोगों के हाथ में जब आ जाता है सब कुछ, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं और दूसरे को इन्फीरियर, और उस केस में वो उसको ग्रो भी नहीं करने देते हैं. तो इसी कारण से हम अपनी सोसाइटी को देखें तो बहुत बुरी तरह से रिच एंड पुअर में डिवाइड हो गई है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज रिसोर्सेज आर इन फ्यू हैंड्स ओनली. मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज इनडिस्क्रिमिनेटिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज. इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ मीन्स नो प्रोपोर्शनल यूज़, नो रैशनल यूज़, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सराउंडिंग में अराइज हो रही हैं. क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम रिसोर्सेज का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं. वी ऑल नो एसी, रेफ्रिजरेटर, आजकल की ये जो गुड्स हैं ये इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है कि इसके बिना हमारी लाइफ नहीं है. चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, कार हो, कहीं भी जाएं, हमें फुली फर्निश्ड चीज़ें चाहिए. एसी रूम, आजकल तो बच्चे भी स्कूल में कहते हैं कि एसी लगे होने चाहिए क्लासरूम में. अब आप सोचिए इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है एसी का, और एसी और रेफ्रिजरेटर, और इनसे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्या होता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है. तो जब ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज सन से डायरेक्टली अर्थ पे पड़ेंगी और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी. दिस इज़ वाई वी नीड टू कंट्रोल आर यूजेस, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वॉट वी आर गोइंग फॉर फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी, जिसके बेसिस पे हम उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं.
So in all short, we can say that an equitable distribution of resources become important to sustain the life of global peace. For this reason, we need to plan the proper way to use our resources. So here we are going to discuss why resource planning is important. And in modern era, we all are engaged, our society, our government, in the world economy, all are engaging and thinking rationally for the better use of resources which can save the environment and save the planet as well. So moving to the second point, that is resource planning. Why it is important? It is widely accepted strategy because everyone in the globe, everyone on this planet, everyone in the world are thinking over the rational use of resources, because हमें इसको आगे भी ज़रूरत है, इसलिए आज के टाइम में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बन गई है कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें. It for second point is for judicious use of resources. resources का सही तरीके से प्रॉपर मैनर में यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी हो गया, रिसोर्स प्लानिंग का ये हिस्सा है. राइट. नेक्स्ट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, आर कंट्री इज़ रिच इन वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इंडिया में? क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो रिच है रिसोर्सेज में. वो भी कैसे? वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमारे यहाँ मिलते हैं. वी ऑल कैन सी around the nation, every state is not perfect in the same way, but different state are rich in different resources. इसलिए resources को बचाना, resources की proper planning करना ज़रूरी है. Next, fifth, no region have equal availability of all type of resources. अभी हमने पढ़ा था accumulation of resources in few hand. The same thing it is described कि कोई भी region ऐसा नहीं है जिसके पास सभी तरह के resource equally available हैं. इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे resources को बचाना. Next, we are going for sixth. Why resource planning is also important? Because in India, state like Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh (MP) are rich in resources. Which type of mineral resources? Right, we all know about Jamshedpur and all. These all are famous for providing iron and ore industry. Why? Because they are rich in this mineral. Arunachal Pradesh has good source of water but no infrastructure. We all know that अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे टॉप पर है. तो वहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत है बट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो हिली एरिया, माउंटेन एरिया है, तो एडवांस टेक्निक ज़्यादा वहाँ यूज़ नहीं हो पाती हैं. लाइक इन द राजस्थान, इफ वी टॉक अबाउट, वी कैन से दैट इन राजस्थान ऑल्सो we are rich in solar energy, right? Solar and wind energy, but we are poor in water facilities. So here you can see in few state water facility is good, but in few state water facility is not available proper. For this reason we need resource planning. ये आज के टाइम की स्ट्रैटेजी है, आज की ज़रूरत है, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी ही करनी पड़ती है. Moving to the next topic, that is resource planning in India. How India is moving into this direction. India किस तरह से planning कर रही है? With the growth of modern era and irrational use of resources are diverting the attention of government to adapt sustainable development strategy. देखिए फिर स्ट्रैटेजी, ये टॉपिक मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक पे, उसको आप फॉलो करिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, तो उसको आप समझ लेना व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो जिस तरह से हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, इरेशनल यूज़ कर रहे हैं, तो आज के टाइम में जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं रिलेटेड टू पॉलिसीज़, रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ द नेशन, सबसे पहला एस्पेक्ट आज के टाइम में यही होता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें so that we can have sustainable development. Means we can protect the future in the same way what we are using today. So resources should be available for future, right? So as well, resource planning of resources is also required in following way. अब कौन कौन से ज़रूरत के कारण हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है जिससे हम नए नए तरह के रिसोर्सेज ढूंढ सकें और जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका सही यूज़ करें. It can be simply said identification and inventory of resources should be done at local level, regional level, national level, and should be measurement of resources done so that we can easily provide resources for the present as well as the future generation. Second,
इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट। ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो, बट टेक्नोलॉजी ऐसी जो इको फ्रेंडली भी हो, स्किल का भी यूज़ हो, मीन्स जो लोग हैं जिनके पास टैलेंट है इनोवेशन करने का, आइडेंटिफिकेशन का, या अपने आपको एक्सप्लोर करने का, और आप अपने आसपास की पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों को और उसको रिसाइकिल करके कुछ न्यू प्रोडक्शन क्रिएट करने का, ऐसी थॉट, ऐसी स्किल, ऐसी कैपेबिलिटी हो, उन लोगों को सेटअप किया जाए, उन लोगों को आगे लाया जाए। फॉर विच वी नीड सम इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑल्सो, क्योंकि हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, इसके लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है, यानी कोई कमेटी, कोई कमीशन का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी पॉलिसी बनाता है वो कहीं भी ऐसे नहीं कि किसी के घर मिल गए, घर बैठ के बना ली, नहीं। इसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए, प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम इसके कॉल होने चाहिए, सो दैट हम टाइम टू टाइम अपने आप को बचा सके। जैसे भी कोई प्रॉब्लम आए, जिस तरह की भी कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आए, उससे रिलेटेड टाइम टू टाइम बैठक भी होनी चाहिए। हम जैसे हम देखते हैं कि आज की जो सिचुएशन चल रही है उसमें गवर्नमेंट किस तरह से हर हफ्ते मीटिंग करता है, हर हफ्ते मिलता रहता है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, इसके लिए एक पॉलिसी मेकर्स एक साथ हुए, इसके लिए एक एसोसिएशन बनाया गया जो हमारी करंट कोविड-19 सिचुएशन से निपटने की तैयारी कर रहे हैं और उसको कई हद तक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम रिसोर्सेज को परफेक्टली यूज़ करना चाहते हैं, उसको अपने फ्यूचर में भी एज ए सेम वे में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हो गई: टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। थर्ड, मैचिंग द प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ट्रू, क्योंकि जो भी प्लानिंग हम रिसोर्स को बचाने के लिए कर रहे हैं, वो प्लानिंग एसोसिएट करनी चाहिए नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। क्यों? क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट प्लान क्या है? जीडीपी को इंक्रीज करना, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना। डेवलपमेंट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ इन पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, डेथ रेट को कम करना, राइट? तो इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना, लिटरेसी लेवल बढ़ाना। तो इन सब को बढ़ाने के लिए हमें रिसोर्स का यूज़ करना है, और रिसोर्स का यूज़ करना मीन्स रिसोर्स की प्लानिंग के साथ, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसको प्रॉपरली यूज़ करना है। तो इस तरह से प्लानिंग की जाए कि वो हमारे नेशनल गोल को अचीव करने में भी हेल्प करे, यानी कि इनको यूज़ करने का एक रैशनल तरीका हो जिससे इसका मिनिमम यूज़ हो के मैक्सिमम एडवांटेज कंट्री को मिले। In these way we need resource planning. Now moving to the next one. Here we have now conservation of resources. Now what is conservation of resources? We need to conserve ना, हम इतनी देर से planning बात कर रहे हैं, तो planning actually क्या है? Planning is all about to conserve the resources. Planning in the way so that we can protect the use of resources in their exploitative way. उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाना है, उनको ओवर यूटिलाइज होने से बचाना है, जिससे कि पोल्यूशन क्रिएट ना हो और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाना है। तो इसके लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। सो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज, क्या कहेंगे हम इसको? इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। Overutilization and misuse of resources are leading to environmental issues like global warming and ozone layer depletion. You can see the picture available here. It is clearly saying the same state which are running in the globe, that due to overuse utilization of resources ये हमारी condition हो सकती है। हम ऐसे हैं और इससे ज़्यादा अच्छे थे, आज हम यहाँ हैं और कल को हम यहाँ हो सकते हैं। तो हमें अपने आप को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कम करें। और अगर हम यहाँ पे देखें ओजोन लेयर डिप्लीशन चेन, यू ऑल कैन सी, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, कि जिस तरह से हम देखिए हाउस होल्ड मॉडर्न एरा जो डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जो कि क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेस जो सन की होती हैं डायरेक्टली अर्थ पे आ, और फिर ये क्या करेंगे? हम सबको नुकसान पहुंचाएंगे। और ये कारण, इसका मेन सोर्स ऑफ डैमेज ऑफ ओजोन लेयर क्या है? हेयर यू कैन सी CFC। व्हाट इज दैट? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑल राइट, in this context Gandhiji has also given his words in which he is also trying to convince, and he is trying to also motivating the, he was also trying to motivate the people to save the environment. Why? Because as he said in his word, there is enough for everyone's need but not for anybody's greed. What does it mean? कि जितनी ज़रूरत है उतना हर एक के पास है,
बट किसी की लालच का कोई अंत नहीं है। ज़रूरत जितनी है उतना हमारे पास है, बट लालच के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। he was trying to say through this word that जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। हम बियॉन्ड है उस चीज़ से। हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अगर इकट्ठा करने की हमें लालच लग गई है कि हमें दिखाना, शो ऑफ करना है, स्टेटस बनाना है, लग्जरी लाइफ चाहिए, तो उस ग्रीड में हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ही करते हैं, राइट। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही हम अगर यूज़ करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी इनकम का भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सस्टेन भी कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो दैट देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड। नीड के लिए रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जितनी ज़रूरत है उतना रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, बट हमारी ग्रीड के कारण ही रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसलिए इसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। हमारी लालच ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रही है, ओवर यूटिलाइज करने में आगे कर रही है, राइट। तो अब इस फैक्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से अटेम्प्ट लिए गए टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व आर रिसोर्सेज। सो फ्यू आर हेयर। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे किस तरह के स्टेप लिए गए रिसोर्सेज को बचाने के लिए, वो कुछ इस वन इज the first and the very serious attempt was made by the Club of Rome in 1968. सबसे पहला environmental issue जो Club of Rome में उठाया गया था, सबसे पहला attempt था in the field of protecting environment. Second was the first environmental conference, the world first environment conference held in Sweden in 1972. तो पहली environment को related जो हमारी कॉन्फ्रेंस बनी गई, जिसमें कई कंट्रीज़ के मेंबर शामिल थे, उन सब ने मिलकर इन्वायरमेंट इश्यूज़ को देखते हुए, क्राइसिस को देखते हुए अपनी बातें रखी और किस डायरेक्शन में पॉलिसीज़ को लेके जाएं, प्लानिंग को लेके जाएं, सो दैट वी कैन कंजर्व इन्वायरमेंट। The third, which is also very important, that is Brundtland Commission report in 1987 has introduced the concept of sustainable development. ये कंसेप्ट बार बार आ रहा है क्योंकि इसी टाइम पीरियड से, इनकी रिपोर्ट की वजह से ही हम समझ पाए कि ये भी एक तरीका है जिससे हम, ये भी एक पॉलिसी बन सकती है हमारी प्लानिंग में, जिससे हम इकोनॉमी को भी ग्रो करें, साथ साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। And sustainable development, like I already taught you, it is the way through which we can use the resources rationally so that it can be available in our future. तो फ्यूचर जनरेशन को उसी तरह से हम प्लानट को हैंड ओवर करें जिस तरह से हम उनको आज यूज़ कर रहे हैं, सो दैट रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। And that report has been published in a book, our common future. तो क्योंकि इस रिपोर्ट का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट भी चाहिए, प्लस ग्रोथ भी चाहिए, तो दोनों को साथ लेके चलना है। इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स ज़रूरी है, जिसको उन्होंने इस बुक के टाइटल में भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है, आर कॉमन फ्यूचर। ये सबका ही एम है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया का या यूएसए का या चाइना का ही एम है या यूके का ही एम है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी का एम है, सबका कॉमन फ्यूचर है। ये प्लानट एज इट इज़ ही आगे ऐसी रहनी चाहिए जैसी अभी हम हैं। फोर्थ पॉइंट, Samacher has written a book, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, थोड़ा छोटा ही बहुत सुंदर है। इसमें अगर हम देखें तो गांधी जी की फिलॉसफी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या कहा था गांधी जी ने, अभी हमने पढ़ा, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड्स, थोड़ा सबकी ज़रूरत के लिए काफ़ी है, बट ग्रीड के लिए ज़्यादा कितना भी हो, बहुत ज़्यादा भी हो, वो भी काफ़ी नहीं होता। अगर आज हम लालच को देखें तो लालच में बढ़ते हुए, कंपटीशन में बढ़ते हुए, हमारे पास जो है हम उससे कभी खुशी नहीं रहते, कभी संतुष्ट नहीं रहते, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जिसके कारण हम रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो इनकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो गांधी जी की फ़िलॉसफी को बिल्कुल सही तरह से डिपेक्ट किया है इन्होंने कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, how India is adopting some plannings which we are also trying to protect our environment, in which our first environmental planning was introduced first in 1986, the Environment Protection Act। फिर हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एंड देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Air Pollution and Prevention Control
एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट इन 1981, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी इन 2006। ये अभी रिसेंट है और इसके बाद भी कई सारे अमेंडमेंट्स, कई सारी पॉलिसीज आती रही हैं जिसके थ्रू हम कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल जैसे वर्ल्ड ने हमें दी हुई है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 हैं, उन सब का एक ही मोटिव को बचाना। तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन एक्ट्स। अब ये एक्ट सारे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाटर, एयर, यानी इन्वायरमेंट का हर एक स्ट्रक्चर, बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, हर तरह के रिसोर्सेज को बचाना है, चाहे वो ओनरशिप बेसिस पे हो, चाहे वो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट पे हो। हर तरह का रिसोर्स को बचाना, प्रोटेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, अर्थ, एयर, ये सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है और एक ब्यूटीफुल अर्थ का पार्ट है। तो हमें अपने प्लानेट को, अपने अर्थ को एज इट इज़ सेव रखना है, और इस सब काम के लिए रिसोर्स प्लानिंग, कंजर्वेशन रिसोर्सेज ज़रूरी है, और उसी के लिए ये सारे एक्ट हमारी कंट्री में भी काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आएगा कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो कुछ हम आज यूज़ कर रहे हैं वो शायद हमें फ्यूचर में ना मिले। For this reason, we need to save our earth, we need to save our resources so that we can have the same beautiful earth in our future. और इसके लिए हम सबको एक प्लेज लेनी होगी कि हम भी अपने आसपास, अपनी इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज का रैशनल यूज़ करेंगे, यानी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे और रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करेंगे, स्कैर्स रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे वो हमारे फ्यूचर और हमारे जो गरीब हैं उनके भी पास इक्वली अवेलेबल हो। सो फॉर दिस रीज़न वी हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से इतनी सारी प्लानिंग चल रही है इंडिया में। तो ये सब प्लानिंग, ये सारे पॉलिसीज, सारे एक्ट सिर्फ इसलिए पास हो रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। सो हियर वी आल्सो प्लेज दैट वी विल प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।